क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। રાજ્યના સુચારુ સંચાલનની વાત કરવી છે. થોડું સિરિયસ વાતચીત હજુ પણ અહીંયાથી ખાસ નેક્સ્ટ લેવલ સિરિયસનેસ લઈને આવીએ. માત્ર એવી છાપ છે સુચારુ સંચાલન માટે થઈને કે આ કામ માત્ર પુરુષો કરી શકે. રાજ્યના સંચાલનની વાત છે એટલે એડમિનિસ્ટ્રેશન અહીંયા તમે જુઓ તો સરકારી એવા કર્મચારીઓ અધિકારીઓ કે જે આપણા સૌ કોઈનું જીવન સરળ બની રહે, સુરક્ષિત બની રહે તે માટે થઈને સતત યોગદાન આપે છે. અને એ માટે થઈને એવી છાપ છે, એવી વાતચીત જરૂર થતી હોય છે કે આ તો જે છે તે પુરુષોનું કામ છે, પરંતુ મહિલાઓ પણ પોલિસી મેકિંગની અંદર અને સાથે સાથે ઇફેક્ટિવ તેને લાગુ કરવા માટે થઈને પણ કામ કરે છે. તો હવે આ મુદ્દે આપણે અહીંથી ખાસ ચર્ચા કરવાના છીએ. આ પેનલ જે છે તે પેનલ છે આપ સૌ કોઈ માટે અમે લઈને આવી રહ્યા છીએ. નામ છે તેનું પબ્લિક પોલિસીઝ લો એન્ડ ઓર્ડર. અને આ માટે સૌથી પહેલા એક નાનકડો વિડીયો અમે આપને બતાવીશું. સૌથી પહેલા અમારા આમંત્રિત મહેમાન જે છે તેમના વિડીયો પર નજર કરીશું. ડોક્ટર હસરત જાસ્મીન. ડોક્ટર હસરત જાસ્મીન મહેસાણા ડીડીઓ તરીકે કાર્યરત છે. MBBS કર્યા બાદ મેડિકલ પ્રેક્ટિસ કરવાની જગ્યાએ લોકોની સેવા કરવાનો વિચાર આવ્યો અને 2017માં UPSC પાસ કરી સમગ્ર દેશમાં 226મો રેન્ક મેળવ્યો. સૌપ્રથમ પોસ્ટિંગ આદિવાસી વિસ્તાર એવા દેવગઢ બારિયામાં SDM તરીકે થયું. 1 મહિનામાં વલસાડ ખાતે 1 કરોડથી વધુની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી વસૂલી હતી. ઊંઝામાં ભારતનું પહેલું એક્સક્લુઝિવ કૃષિ યાર્ડ શરૂ કરાવ્યું છે. અને આવા જ એક અન્ય આમંત્રિત મહેમાન છે ડોક્ટર નિધિ ઠાકુર. એમના વિશે પણ થોડી માહિતી જાણીએ. ડોક્ટર નિધિ ઠાકુર IPS સાબરમતી જેલના સુપરિન્ટેન્ડન્ટ, બિહારના ખડગિયા જિલ્લાના શિરનિયા ગામના રહેવાસી. MBBSનો અભ્યાસ કર્યા બાદ પટનાની PMCH હોસ્પિટલમાં ડોક્ટર તરીકે સેવા આપી. જનરલ મેડિસિનમાં MD માટે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો. નિધિ ઠાકુરે વર્ષ 2019માં UPSC ત્રીજા પ્રયત્ને 180માં રેન્ક સાથે પાસ કરી. પહેલા વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાં અને હાલ સાબરમતી જેલમાં કુખ્યાત આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ રાખવામાં મોટી સફળતા મેળવી છે. તો આ બંને મોંઘેરા મહેમાનોને અમે આમંત્રિત કરીએ છીએ સ્ટેજ પર. ડોક્ટર હસરત જાસ્મીન, પ્લીઝ કમ ઓન ધ સ્ટેજ. અને ડોક્ટર નિધિ ઠાકુર, આપને પણ મંચ પર આમંત્રણ. અને આ ચર્ચા જેઓ કરશે તેમના વિશે તો શું વાત કરવી, તેમનું નામ જ કાફી છે. કાજલ ઓઝા વૈદ, કોલમિસ્ટ, સાહિત્યકાર અને હવે તો એમની યશ કલગીમાં એક નવું પીછું ઉમેરાયું છે, અભિનેત્રી. મોટિવેશનલ સ્પીકર તરીકે જ્યારે તેઓ બોલતા હોય ત્યારે એમ થાય કે એમને જ સાંભળ્યા કરીએ. 2005માં તેમનો પહેલા ટૂંકી વાર્તાનો સંગ્રહ આવ્યો અને ત્યારથી જ તેમની કલમથી ભારે વાતો પણ તેઓ બ્યુટીફુલી રજૂ કરતા હોય છે. પ્લીઝ વેલકમ કાજલ ઓઝા વૈદ. ઓવર ટુ યુ મેમ. થેન્ક યુ. પહેલા એવી સ્ત્રીઓ જેમણે ગ્લાસ સીલિંગ તોડીને જિંદગીને એક નવો આયામ આપ્યો, એક નવી દિશા બતાવી. એ પછી એવી સ્ત્રીઓ જેણે એન્ટરટેનમેન્ટની દુનિયાને એક નવી જ રીતે તમારી સામે રજૂ કરી. અને હવે હું એવી બે વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરવાની છું જે આપણી કાયદો અને વ્યવસ્થાની આ આખી સિસ્ટમને એમના નાજુક ખભા પર ઉપાડીને આપણને એક એવી અદ્ભુત સિસ્ટમ આપે છે, આપણને સૌને યોગ્ય અને સાચી રીતે જીવવાની દિશા બતાવે છે. ડોક્ટર નિધિ ઠાકુર બિહારથી છે. 3 પ્રયત્ન UPSCના એમણે કર્યા પણ હાર્યા નથી. એમણે નક્કી કર્યું કે MDમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવવા છતાં એમને UPSCની પરીક્ષા આપવી છે અને IPS કરવું છે. આપણી સાથે છે ડોક્ટર હસરત જાસ્મીન, જે અત્યારે મહેસાણાના DDO તરીકે કામ કરે છે. કોઈને એવું કહેવું હોય કે મારે જેલમાં જવાનું છે તો ગભરામણ થઈ જાય. જેલ શબ્દથી જ આપણે બધા ડરીએ છીએ. એવી જગ્યાએ ડોક્ટર નિધિ ઠાકુર કામ કરે છે. એવા લોકોને એમણે પોતાના કાબુમાં રાખ્યા છે જે લોકો આ રાજ્યને, આ શહેરને ગેરવ્યવસ્થાના માર્ગે દોરે છે. સૌથી પહેલા મેમ તમને પૂછવું છે
કિરણ બેદી જ્યારે જેલમાં પોસ્ટિંગ થયું ત્યારે એમને લાગેલું કે અરે આ તો પનિશમેન્ટ પોસ્ટિંગ છે. તમને જ્યારે જેલમાં પોસ્ટિંગ મળ્યું ત્યારે કેવું? Is it on? બિલકુલ. So, my first thought was the same actually. I thought that I have become an IPS officer and field में जाऊंगी तो वहाँ पे अलग तरीके का काम होता है क्योंकि जेल में आने के पहले मैं SDPO तरीके सूरत में पोस्टेड थी और वहाँ पे काम का एक्सपीरियंस कि आप फील्ड में होते हैं, रोज अलग जगह विजिट होता है, अलग जगह क्राइम आप फेस करते हैं. वेरएज जब जेल में पोस्टिंग होती है तो आपको लगता है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो गए एक जगह पे और ज्यादा आप फील्ड में नहीं जा सकते, तो एक फीलिंग आती है कि हो सकता है पनिशमेंट पोस्टिंग हो. बट ये मेरी धारणा पहले दिन ही गलत साबित हुई जब मैंने देखा कि वहाँ काम क्या करना है और मैंने रियलाइज किया कि ये काफी ज्यादा जिम्मेदारी का पोस्ट है, शायद फील्ड में जो काम है उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी का पोस्ट है. तो इसलिए अब मैं ऐसा नहीं मानती कि पनिशमेंट पोस्ट है. बहुत बड़ी बात है. हम सब हंसते हैं मैम, GJ2 एक ऐसा कल्चर है जिससे सब डरते हैं. मतलब वो GJ2 जहां जिसने पढ़ लिया सबको लगता है महसाणा और ऐसी जगह है जहां पर एक औरत काम कर रही है. ऐसे लोग जो वहां पर किसी की सुनते नहीं है, वहां आप DDO हैं, क्या अनुभव रहा आपका? एज अ वुमन, हाउ डू यू सी दिस न्यू पोस्टिंग एंड हाउ डू यू डील विद इट? चालू है मैम, इट्स वर्किंग. आई होप इफ इट्स नॉट. सो थैंक यू. आपने जो सवाल पूछा है એનો જવાબ થોડું સ્ટ્રેટ તો નથી છે, પણ સૌથી પહેલા સવાલ જ સ્ટ્રેટ નથી. બિફોર આઈ આન્સર ધીસ હું એક વાત સૌથી પહેલા એ કહીશ કે એઝ ઓફિસર પોસ્ટેડ એટ મહેસાણા હું બહુ ખુશ છું કે સુનીતા વિલિયમ્સ જો કે ત્યાં ઝોલાસન ગામના છે તો શી હેઝ રિટર્ન્ડ બેક અને સેફલી રિટર્ન થઈ છે અને અમે બધા મહેસાણાવાસી બહુ ખુશ છીએ. જોરદાર તાળીઓ સાથે આપણે સુનીતા વિલિયમ્સને પણ આજે યાદ કરવા જોઈએ. સેફલી પાછા ફર્યા છે અને આપણા દેશનું નામ એમણે રોશન કર્યું છે. હાઉ વન્ડરફુલ મેમ. સો મહેસાણામાં જો પોસ્ટિંગની વાત કરીએ, સો પોસ્ટિંગ ઇઝ અ વેરી જેનરિક ટર્મ. યુઝ્યુઅલી શું હોય છે, જ્યારે પણ કોઈ લેડીની પોસ્ટિંગ થાય છે કોઈ એવું ડિસ્ટ્રિક્ટ હોય, લાઈક ફોર એક્ઝામ્પલ મહેસાણામાં earlier to me, I am the first female officer posted there as TDO. So એ બાતની ખબર જાણ મને પણ હતી અને શરૂઆતથી લઈને ટિલ ડેટ મને એમ લાગે છે કે મારી જો કેપેસિટી છે, ધી કેપેસિટી ટુ ડ્રીમ બિગ, ધી કેપેસિટી ટુ વર્ક, જો આજ મને પોઝિશન મળી છે એ શું છે, મારી પેરેન્ટિંગ જો મારા પેરેન્ટ્સને મને આપી છે. સો એ પેરેન્ટિંગનો રિઝલ્ટ છે કે આજ અમે બધા ઇનફેક્ટ સ્ટેજમાં આપ છો, ઠીક હે, નિધિ છે, અમે બધા બેઠા છીએ. વી ઓલ આર અ રિઝલ્ટ ઓફ ગુડ પેરેન્ટિંગ કે અમે આ મોકા મળ્યા કે વી હેવ બીન એબલ ટુ અચીવ આર ડ્રીમ્સ. સો મને એમ લાગે છે કે હવે એઝ ઓફ નાઉ એ મારા ઉપર એક મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય છે કે હવે હું મારી જો બહેનો છે, જો સિસ્ટર્સ છે, હવે હું એમને એવી પ્રકારનો એક એટમોસ્ફિયર પ્રોવાઈડ કરું, એક સહુલત આપણે એમને એવી રીતની આપીએ કે એનો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અને એનો જો ગોલ છે, જો એની કોઈ ડ્રીમ છે લાઈફમાં જો અચીવ કરવા માંગે છે એ કરી શકે. તો આટલી સપોર્ટ એઝ એન એડમિનિસ્ટ્રેટર અમે પ્રોવાઈડ કરીએ. સો ઇન મહેસાણા મારો ગોલ મેનલી એઝ ઓફ ડેટ એ છે. વેરી નાઇસ મેમ. આપકે તમે જ્યારે આવ્યા જેલમાં અને પછી તમે એજ્યુકેશન માટે બહુ કામ કર્યું, બહુ બધા લોકોને તમે પરીક્ષાઓ અપાવી, તમારા કેદીઓ સાથે જે કામ તમે અત્યારે ઇન્મેટ સાથે કરી રહ્યા છો એના વિશે પ્લીઝ શેર કરો, કારણ કે બહુ જ ઓછા લોકોએ જેલમાં ગયા પછી સુધારની પ્રવૃત્તિ કરી છે અને જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે એ બહુ જ મોટું કામ છે. સાબરમતી જેલમાં તમે વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાં હતા ત્યારે પણ તમે એજ્યુકેશન માટે, સ્પેશિયલી ઇન્મેટ્સના એજ્યુકેશન માટે બહુ કામ કર્યું. સો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ શેર દેટ વોટ યુ હેવ ડન. ઇન્સ્ટેડ મી સેઇંગ ઇટ, आई वांट यू टू से इट. सो प्रिजन ना पूरा नाम ही प्रिजन एंड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है. लोगों को ऐसे लगता है कि जेल में गए और बंद कर दिया और फिर उसके बाद उसे कोई देखता नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं है.
एक बार जेल में कोई कैदी आ गया तो हमारा सारा मोटिवेशन यही रहता है कि कैसे उनके अंदर जितने भी पॉसिबल है सुधार वो लाया जाए। और जैसा कि मैम ने बोला, एजुकेशन का रोल उसमें बहुत ही ज्यादा है। मुझे खुद भी पढ़ना बहुत पसंद है और ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी किया है वो पढ़ाई की वजह से ही पॉसिबल है। तो उसमें पहले लिए तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात ये थी कि कई कैदी खुद ही जेल के अंदर रहते हुए कोई एलएलबी की एग्जाम देना चाह रहा था, कोई खुद अपना केस लड़ने के लिए पढ़ाई कर रहा है, किसी को 10th का एग्जाम, किसी को 12th, किसी को ग्रेजुएशन। खुद ही कैदियों के ये एस्पिरेशंस थे। उससे ही इंस्पायर होकर मुझे लगा कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो इनको मोटिवेट कर सके, बुक्स का कलेक्शन बढ़ाए। साथ ही साथ गुजरात के जेलों में आई थिंक कि देश का एकमात्र राज्य है जहां इतनी ज्यादा संख्या में रेडियो प्रिजन की व्यवस्था है। उसके अंदर हम बंदी भाइयों को रेडियो पे जो चाहे वो प्रोग्राम सुना सकते हैं। तो सारा हमारा ध्यान उस पे कि किस तरह इन्हें ज्यादा से ज्यादा इसके थ्रू एजुकेट किया जा सके, और नॉट जस्ट बुकिश एजुकेशन, जिससे कि उनको उनके केस में भी फायदा हो, उनको ओवरऑल उनके लाइफ में फायदा हो। कोई भी गरीब लोगों के लिए या डिसएडवांटेज लोगों के लिए कोई भी सरकार की सहायता की अगर प्रोविजंस है तो वी मेक श्योर कि हमारे बंदी भाई भी उसका फायदा उठा सके। बाहर पुलिस में जब नौकरी कर रहे होते हैं तो एक बार जेल में जाने के बाद फिर हम भूल जाते हैं कि किसको डाला। यहाँ पर एक अलग अप्रोच होता है, जब आप भूल जाते हैं कि उन्होंने बाहर क्या क्राइम किया, रादर आपका फोकस ये रहता है कि जो बात बाहर रह गई उसको भूल के अंदर इनमें सुधार लाया जाए। एक कहावत है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। वही अप्रोच बना के हम जेल के अंदर काम करने की कोशिश करते हैं। What a wonderful line. Every saint has a past and every sinner has a future. I think इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती मैम। हम सब कितना जज करते हैं लोगों को, अपनी सीट में बैठकर हम कहते हैं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, આમ કરાય આમ ન કરાય। અને સ્ત્રીઓ માટે ખાસ કરીને જેલ એક એવી જગ્યા છે કે પોસ્ટિંગ થાય ત્યારે સૌથી પહેલું તો પરિવાર જ વાંધો ઉઠાવે કે જેલમાં કેવા લોકો હોય, જેલમાં આવા લોકો હોય, જેલમાં તેવા લોકો હોય। ત્યાં she is working and she is changing the atmosphere of the prison. So I really congratulate you ma'am and I am so proud of you. आपसे पूछना चाहूंगी मैम कि डीडीओ की जगह पर जब आप बैठती हैं तो जमीनों की या दूसरी चीजों की બીજું એવા બધા પણ સવાલો આવીને ઉભા રહે, ખોટી જમીનો, ખોટા દસ્તાવેજ, ખોટી રેવન્યુઝ, બીજા પ્રશ્નો, માથાભારે લોકો, એની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરો છો? आप तो कितनी ऐसी नाजुक और सुंदर और जो लोग आते होंगे मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर योर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, बट एट द सेम टाइम I mean the way you are mild and the way you speak, मुझे नहीं लगता आप किसी को डांट सकती हैं। that depends that depends on the situation though, but जो आपने बात किया है it is very true. अलग अलग प्रकारना सिचुएशन અને કેસો આવતા હોય છે। सुबह से लेकर शाम तक हमारी एक स्पेसिफिक रूटीन रहती है which निधि कैन वेरी वेल रिलेट टू that we are bound by a specific routine. સવારથી સાંજ સુધી અમે બધું કામગીરી કરતા હોઈએ છીએ। એમાં ઘણા બધા પ્રકારના કેસીસ હોય છે। देयर आर बिकॉज एज एन ऑफिसर आपको काम पर्दे के पीछे रह के करना पड़ता है, बट देन एट द सेम टाइम यू हैव टू काउंटर सो मेनी फोर्सेस। आपको बहुत पेशेंस भी रखना पड़ता है। एट द सेम टाइम यू जस्ट हैव टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल ऑल्सो कि भाई जो मैं एक्चुअल में चाहती हूँ करना या जो मेरी विजन है एज एन ऑफिसर, आई शुड डू दैट ऑल्सो। अभी बात करें तो अबाउट आई वुड जस्ट लाइक टू से, जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे थे कि अगर मैं आपसे हस्बैंड के बारे में पूछूं, सो वो चीज़ मैं ही बोल दूंगी इनफैक्ट दैट अभी यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, सी देर आर सो मेनी मेन सिटिंग हियर। सो આટલા બધી અમાઉન્ટમાં જ્યારે મેલ્સ બેઠા હોય છે ઇન અ પ્રોગ્રામ દેટ ઇઝ બેસિકલી ટોકિંગ અબાઉટ વિમેન એમ્પાવરમેન્ટ, સો સૌથી પહેલાં તો એ બહુ ગર્વની વાત છે कि all the men sitting here are sitting for a cause and they are supporting us. जैसे बोलते हैं ना कि like behind every successful man there's a woman, so behind every successful woman I must say that there is a supportive man as well. There are also non-supportive men who make the woman more powerful. Yes, then there are certain men who force these women, you know, बोलते हैं कि जो भी एक बहुत strong lady है या if there is a strong independent woman, behind her was a very meek, either a meek girl, a very gentle girl or a very gentle lady, जो कि वो circumstances
જે આ પ્રકારના ઊભા કર્યા કોઈને સોસાયટીને અથવા તો family, but then she had overcome that all, and then she had come beyond that to a certain position where she can actually sit and decide on her own fate and on the fate of others as well. कैसा लगता है मैम, आप बहुत पावरफुल चेयर पर बैठती हैं, how much power do you feel when you sit on your chair, and what does that power do to you? आपको कभी लगता है कि ये पावर का मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो इस्तेमाल कर सकती हूँ, कभी पावर दिमाग में जाता है? मैं आपको बताती हूँ, जो पावर जैसे आप बता रहे हैं, अब बोलते हैं कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हेन वी आर सिटिंग एट अ पोस्ट लाइक दिस, सो उस टाइम पे वी आर सिटिंग एट अ पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग. आई कैन से, निधि कैन ऑल्सो रिलेट, कि हम उस टाइम पे डिसीजन मेकर्स की तरह बैठते हैं. वी सिट एज एजेंट्स ऑफ चेंज एज वेल. सो जब डिसीजन मेकिंग की पावर आपके हाथ में रहती है, एज चेंज मेकर आपके हाथ में पावर रहती है, उस टाइम पे आपके ऊपर उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी होती है. वो जिम्मेदारी होती है जिस तरीके से हम बात करते हैं. नाउ सिंस वी आर इन द गवर्नमेंट सेटअप, तो आई ऑब्वियसली टॉक अबाउट आवर पॉलिसीज, क्योंकि आई वॉज ब्रीफ्ड अबाउट कि इसमें थोड़ा पॉलिसीज के बारे में शायद डिस्कशन होगा. सो what we realize is कि सरकार, भले ये भारत सरकार છે, भले ये गवर्नमेंट ऑफ गुजरात છે, we have had very good budget, જેમાં સ્પેસિફિકલી મહિલાઓ માટે આ વખતે બજેટમાં ખૂબ સારી વ્યવસ્થા લે ડાઉન કરી છે. ભલે પ્રોપર્ટીમાં વાત કરી હોય, ભલે એનો વર્કફોર્સમાં, લેબર ફોર્સમાં એનો जो ગણતરી છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની વાત હોય, so many things. ઇવન ગુજરાત સરકારનો પણ એમાં ઇનિશિયેટિવ બહુ સારો ઇનિશિયેટિવ, એમાં ઘણા બધા છે સારા ઇનિશિયેટિવ્સ છે. જેન્ડર પોલિસી પણ છે એક નવી જો બની છે, જો લાસ્ટ ટાઈમ व्हेन आई वाज इन WCD आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, एंड आई वेरी प्राउडली से दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिसी. सो उस टाइम पे ये सब जो चीज़ें अब हम देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि पॉलिसी नो इंटेंट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इट हैज़ बीन गिवन, પણ હવે પોલિસીનો ઇફેક્ટિવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન અમારા હાથે, એ અમારી જવાબદારી છે. સો પોલિસીનો ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કેવી રીતે થશે? હવે પોલિસીમાં जैसे कि मेरे से ज़्यादा इसमें निधि जानती होगी, शी मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल द रूल्स एंड जो भी है ना. सो बिकॉज ऑब्वियसली इन IPS शी इज वेल रेड एज, मतलब रूल्स અને આ બધું મહિલાઓ માટે ફ્રોમ બર્થ टिल जब तक કે वो एक बुजुर्ग एज तक भी जाती है, ઘણી બધી સ્કીમ્સ છે સરકારની. देयर आर एवरी सपोर्ट एंड पॉलिसी हैज बीन प्रोवाइडेड, પણ એમાં કોઈ બી ડિસ્કનેક્ટ જો છે, એ ડિસ્કનેક્ટનો આપણે કેવી રીતે દૂર કરીએ? મહિલાને સાંભળવાની જો વાત છે, હાઉ ડુ યુ एक्चुअली गिव हर अ वेरी पेशेंट हियरिंग, हाउ डू यू लिसन टू हर, हाउ डू यू मेक हर फील कि शी इज बीइंग हर्ड एंड शी इज इक्वली इम्पोर्टेंट, एंड हाउ डू वी मेक हर द ड्राइविंग फोर्स. लाइक फॉर एक्जाम्पल અમારામાં સખી મંડળ ચાલતા હોય છે ઘણા બધા, તો સખી મંડળની બહેનો ખૂબ સારી કામગીરી કરે છે. એમાંથી ઘણી બધી બહેનો એ પણ છે જો पंचायत लेवलમાં અથવા તો they have started from सखी मंडल and as on date they are political leaders. ऑफ कोर्स पॉलिसीज तो प्रोबेबली हर गवर्नमेंट में बनती रही है, लेकिन इस बार जब मैं देख रही हूँ, whenever I am looking at the government now and the policies now, I feel that women have been given lot of importance and lot of power. So when I see you in a uniform, I think all the women sitting here are greatly inspired कि ये यूनिफॉर्म के साथ जो आता है वो एक अजीब सा गौरव है जो सबको नहीं मिलता है. तो कैसा लगता है जब आप यूनिफॉर्म पहनती हैं, जेल में एंटर करती हैं और कहा जाता है स्त्री देवी है, माँ है, करुणा है, ये है, फला है, बात बात में रोती है. ऐसी औरत जब जेल में एंटर करती है, खूंखार लोगों के साथ काम करती है, तब कैसा फील करती हैं आप? और प्लीज शेयर कीजिए क्योंकि ये लोग सुनना चाहते हैं मैम. यही तो बात है, हम यहाँ इसलिए नहीं है कि हम अच्छी अच्छी बातें करें, हम सच्ची सच्ची बातें करें. बिल्कुल. पहले तो आपने एक सवाल में बात बोली कि स्त्री माँ है, करुणा है, बात बात में रोती है. तो एक कॉमन परसेप्शन है कि बात बात में रोना और करुणा होना और माँ होना कोई वीकनेस की निशानी है, जो कि गलत बात है. ये शुरुआत बाकी जीवन को अगर छोड़ दे, केवल पुलिसिंग की मैं बात करूं, ट्रेनिंग में, जब ट्रेनिंग में हम जाते हैं तो उसमें काफी फिजिकल कंपोनेंट होता है. ऊंचाई से कूदना है, रस्सी पे झूलना है, दौड़ना, ये वो. तो मुझे पर्सनली ऊंचाई से थोड़ा डर लगता है, हालांकि मैं काफी ऊंची हूँ खुद भी, बट फिर भी मुझे ऊंचाई से डर लगता है. तो मैं एक दिन ट्रेनिंग के दौरान ऊंचाई पे कहीं खड़ी थी और नीचे जंप करना था, और
थोड़ा सा रुआंसी हो गई कि मैं नहीं कूदूंगी, बहुत ऊंचा है। तो सामने से कि अरे मैडम आंसू का नहीं बहाने का है, ये नहीं करने का है। तो लेकिन अगर रोने से ही मुझे हिम्मत आ रही है तो वही करके मैं अपना काम तो करूं। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि जो महिलाओं अपने इमोशंस को समझते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, वो कहीं से भी वीक है। और मैं आप जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, मैं उन सबको ये बोलना चाहूंगी, नेवर फील that if you are showing emotion it means that you are weak. You are not. Wonderful. And as far as wearing uniform goes, जेल स्पेसिफिकली की मैं बात करूं तो जेल, महिला जेल और पुरुष जेल अलग अलग ही बनाया जाता है नियम के अनुसार, और स्टाफ भी वैसे ही डिवीजन होता है। पुरुष जेल में पुरुष स्टाफ होता है, महिला जेल में महिला स्टाफ होती है। तो जब मैं पुरुष जेल में एंटर करती हूँ तो आई एम द ओनली वुमन इनसाइड दैट जेल। जो 4000 हमारे We deserve a great round of applause on this. तो उसमें 4000 के लगभग कैदी हैं और 400-500 हमारे स्टाफ होते हैं। आई फील लाइक आई नेवर फील थ्रेटेंड इनसाइड। एंड ये यूनिफॉर्म, ये मेरा पावर है, ये मेरा कवच है, ये ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसको कैरी करना मैं अपने जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझती हूँ। that I never act in a way which will embarrass my uniform. कि कभी कोई पुलिस वाला गलत काम करता है, सबसे पहले उसे ये सुनना पड़ता है कि आपने खाकी की इज्जत तो रखनी थी। And this I feel is the biggest responsibility that I have been given. And एक काफी गर्व महसूस होता है जब आप यूनिफॉर्म पहन के चलते हो, and automatically you feel that एक आपके ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अब आपको लोग सुनेंगे और आपको कुछ उनके अच्छे के लिए करना है। This I feel it grants and I feel very grateful for it. Wonderful, ma'am. Great round of applause for the uniform. अब तो नेवी में भी women have been included and the women are given navy uniform also. So we must appreciate and say great things about the women who are responsibly ये यूनिफॉर्म पहनती हैं और यूनिफॉर्म को लेकर चलती है। आपसे पूछना चाहूंगी मैम, और मैं चाहूंगी आप दिल से सच्चा जवाब दें, कभी किसी ने ब्राइब देने की कोशिश की है? ऑफ कोर्स, यस। कैसे डील करती है? मैं स्ट्रेट अवे मना कर देती हूँ, थोड़ा प्यार से बट थोड़ा स्ट्रिक्टली, ये बोल तो के। डराता नहीं है कोई? कभी कोई डराता नहीं है आपको? नहीं, डराया तो नहीं किसी ने। बट देन एक क्या होता है, ऑफिसर यूजुअली एक इमेज भी कैरी करके चलता है, तो वो चीज भी मैटर करती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, तरीका होता है लोगों का, या तो वो आहिस्ता से बोल देंगे कि जैसे मैं शुरू में व्हेन आई वाज पोस्टेड एट वलसाड, उस टाइम मैं स्टैम्प ड्यूटी में थी, तो उसमें क्या होता था कि इनडायरेक्ट तरीके से मुझे बोला जाता था कि आपको आपकी ये फैसिलिटी करवा देंगे, आपके गाड़ी में हम एसी लगवा देंगे। उस टाइम पे ऐसा था कि जो हमको गाड़ी मिली होती दैट वाज नॉन एसी। सो इस तरीके से, और मुझे डायरेक्टली वो मुझे नहीं बोला था, इट वाज सेड टू माय पीए, सो ही केम एंड टोल्ड मी। सो इस तरीके से कुछ ना कुछ वर्बल क्यूज या यूं कह लीजिए कि लोग बोलते हैं, बट देन विद टाइम क्या होता है, आपकी एक इमेज डेवलप हो जाती है एंड लोगों को समझ में आ जाता है कि अब फायदा नहीं है या इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देन वी शैल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। तो मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है। बिल्कुल। तो आप, और भी एक बात आपसे पूछना चाहूंगी मैम, कि आप जहां बैठती हैं जिस चेयर पर, उस चेयर पर धमकियां भी मिलती होंगी? मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। उससे कैसे डील करती है? बस इसी तरीके से। घर वाले डरते नहीं है? घर वाले नहीं, घर वाले तो बिल्कुल भी नहीं डरते, घर वाले सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ ना, इट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ पेरेंटिंग, कि जैसी पेरेंटिंग आज की डेट में मैं वही बात अगेन मैं बोलूंगी कि जैसी पेरेंटिंग, हम जितने स्पीकर्स यहाँ पे आए हैं, भले ही वो अच्छी पेरेंटिंग है या भले हमारी खुद की मेहनत है, आई वुड एट्रीब्यूट दैट टू माई पेरेंटिंग ऑल्सो। सो जो चीज हमें सिखाई गई है, जिस तरीके से हमें रेज किया गया है, उस चीज का फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट करे तो वो इट इज लाइक सोने पे सुहागा हो जाना। एंड सिचुएशंस बहुत सारे आते हैं, वर्क लाइफ स्ट्रेस होता है, इम्बैलेंस होता है, बहुत सारे कई बार इन्फ्लुएंसेस होते हैं, ठीक है। एंड उस चीज में आपको ये सोच के चलना है कि जो आप काम कर रहे हैं, अगर वो काम आप सही कर रहे हैं, अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, आपने सही सोच लिया है कि मुझे यही करना है और मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। क्या बात है। मैम आपसे पूछना चाहूंगी कि आप
जब ये काम करती हैं, कभी डर लगा? नहीं एक्चुअली तो उस हिसाब से ही फिर हमारी ट्रेनिंग है और हमें पता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है. वी आर प्रिपेयर्ड टू टैकल एनी चैलेंजेस. डर से बेटर वर्ड मैं यूज करूं, एक एप्रीहेंशन वर्ड होता है इंग्लिश में. जब आप सतर्क रहते हैं तो दिमाग में जो एक वो सिक्स सेंस जागृत रहती है कि बिल्कुल. हाँ यहाँ थोड़ा संभालना है. यस. तो जैसे विमेन की जब सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की बात होती है तो उसमें लोगों को ऐसा लगता है कि बस लड़के किसी को भगा देना दैट इज सेल्फ डिफेंस. आई डोंट थिंक सो. जब सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लिया या इस तरह की जब आपकी ट्रेनिंग है मार्शल आर्ट्स में या कुछ भी, देन यू गेट टू नो कि सिचुएशनल अवेयरनेस किसको बोलते हैं. द मोमेंट यू एंटर अ रूम यू ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली यू स्कैन द रूम, यू रियलाइज कि ये पर्सन है जिससे मुझे अलर्ट रहना है. एंड अगर आप ये नहीं करते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉन्फिडेंट हो या बहुत पावरफुल हो. इसका मतलब है आप थोड़ा केयरलेस हो एंड विच वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी. तो आई वुड नॉट से डर लगता है, बट यस आई ट्राई टू बी एज अलर्ट एंड एज सेंसिटिव टू द सराउंडिंग एज पॉसिबल. एंड ये मैं हर औरत या आदमी को भी ये एडवाइस तो देना चाहूंगी कि ऑलवेज माइंड योर सराउंडिंग्स. सो दिस इज समथिंग. एंड आई कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपने अपना सेल्फ डिफेंस या अपना ट्रेनिंग सच में इस्तेमाल किया, किसी को मारा हो, कहीं आप फंसी हो? जैसे ये हम तो फिल्मों में देखते हैं पुलिस को मैम, या फिल्मों में जो जेल देखते हैं वही हमारे लिए तो जेल है. तो क्या सच में क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सच में कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां यू हैव रियली हैड टू यूज योर ट्रेनिंग? ऐसा कोई प्रसंग अगर आप हमारे साथ शेयर करें. सब कुछ शेयर नहीं किया जाता है. फिर भी हम नाम नहीं सुनेंगे. नहीं, नाम की बात नहीं है, बट हाँ वी ट्राई टू वर्क विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन. एज मैम वुड ऑल्सो अटेस्ट टू दिस, यू कैन नॉट क्रॉस सर्टेन बाउंड्रीज जस्ट बिकॉज यू फील दैट समबडी हैज मेड अ मिस्टेक. तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास बेतहाशा पावर है, आप जो चाहें कर ले. नो, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको आपको फॉलो करने हैं. अगर किसी ने गलती की है तो उसको पनिश करने के अपने तरीके. Excuse me, ma'am, excuse me. I think it's happening something here. And we would appreciate if you can listen to the people who are talking. હા ના વાત તમે કંઈ પણ કરતા હતા પણ કોઈ બોલતું હોય તો મને લાગે કે આપણે સાંભળવું જોઈએ. That's a nice way of doing it. Thank you, ma'am. Yes, please. Please. Yes. I'm almost finished, but this was it. So, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगा कि जेल में नहीं काम करना है, पुलिस में नहीं काम करना है, कोई ऐसी जगह आई जहां आपको लगा कि नहीं यार ये गलत चुनाव हो गया? ऐसा लगा है कभी? When you have felt low, when you have felt that no, this is not what I wanted to do in life, ऐसा कभी लगा? Not exactly, but कभी-कभी हमारे कुछ एक लॉज ऐसे होते हैं. ऐसे हमें लॉज को क्रिटिसाइज मैं नहीं कर रही, बट समटाइम्स यू फील कि जिनको हम अक्यूज्ड तरीके बता रहे हैं, आरोपी बता रहे हैं, उनकी शायद उतनी गलती नहीं है, बट हम लॉ में बंद के रह गए हैं तो उसमें हमें वो एक्शन करना ही पड़ेगा. इस तरह की चीजें जब होती है, जब आपको लगता है कि सिंस वर्ड्स में ऐसा लिखा है तो हमें किसी को इस तरीके से पनिश करना ही पड़ेगा, दैट इज द टाइम आई फेल्ट कि शायद कुछ लिबर्टी होती है हमारे पास कि उसको स्कर्ट कर सकते हैं हम. उस समय में ऐसा लगा है मुझे. So now that you are a woman and you are dealing with law, what would you say about the abuse, the misuse of 498A? 498A का मिसयूज थोड़ा ओवर हाइप्ड है. दिस इज अ कॉमन टूल नॉट जस्ट इन 498A, एनी वुमन रिलेटेड क्राइम. जब पहली बार वो सामने आता है तो सामने इसलिए वो कम आते हैं क्योंकि विक्टिम को पता है कि जब मैं जाके अपनी बात बताऊंगी तो सबको ये लगेगा ये झूठा फंसाने की कोशिश कर रही है. और एक ये कॉमन धारणा बन गई है कि ये 498 टाइप का केस है या पॉक्सो है तो झूठा होगा. नो, आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू. व्हाट मे बी दैट a lot of crimes which are genuine are underreported because of this lack of trust. तो हो सकता है कि एक छोटा परसेंट झूठा भी हो, बट उस छोटे परसेंट के वजह से देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हु आर नॉट बीइंग केटर्ड टू. और इस धारणा के वजह से जो जेन्युइन
विक्टिम्स हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? that is very true what she is saying, क्योंकि तो क्या करना चाहिए इसके लिए? I would just like to add on to that what she is saying is, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, sometimes due to societal pressure या ये सोचना कि क्या बनेगा, या एक विक्टिम ब्लेमिंग का जो हमारा सोसाइटी से एटीट्यूड थोड़ा चल रहा है, एमा थोड़ा अपने चेंज करवानी जरूरियात तो है। ये चेंज શું હોઈ શકે? What can be that change? That change can be, to begin with, સૌથી પહેલા તો it should be every department जो in a suppose it again charity begins from home। अगर बात करेंगे हम तो सोसाइटी से शुरुआत करनी चाहिए। सोसाइटी में कौन है? आजकल हम सब लोग बैठे हुए हैं, वी ऑल आर सोसाइटी, वी हैव टू स्टार्ट। सौथी पहला तो इस चीज को, इस मेंटालिटी को निकाल देना कि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसको विक्टिम शेमिंग ब्लेमिंग करना बंद करना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि जो पण जगह लेडी सपोज रजिस्टर કરવામાં જાય છે, या केस सपोज इट इज पुलिस बेस सपोर्ट सेंटर છે, या पुलिस महिला पुलिस स्टेशन છે, या कोई पण पुलिस स्टेशन છે, या इफ शी इज गोइंग फॉर अ लीगल दिस थिंग तो ત્યાંનો ટ્રાયલની વાત છે। સો ટાઈમલી એને જસ્ટિસ મળે, એમને એવા સપોર્ટ સિસ્ટમ डिपार्टमेंटली पण મળે, ठीक है ना। दी पर्सन्स हु आर डीलिंग विथ सच केसेस शुड बी सेंसिटाइज्ड इनफ। तो एना माटे सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग जेना ऊपर पण सरकार इज फोकसिंग, ठीक है ना, एनो फोकस पण छे। सो ए पण होवू જોઈએ। ત્રીજી વાત, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, इसको बताना चाहिए, विमेन शुड सपोर्ट अदर विमेन एज वेल। कई बार क्या होता है, which is the most important thing I think, ઘણી વાર we all should know this। શું થાય છે कि जो सपोर्ट हमको एक लेडी से, एक जिसको हम साथी मान के चलेंगे उससे मिलेगा, वो शायद हमको हमारी फैमिली से भी ना मिले। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अ वुमन हैज टू अंडरस्टैंड अनदर वुमन, शी हैज टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर वुमन इज गोइंग थ्रू। कई बार क्या होता है, लाइक one of the things which is very less discussed these days, again Nidhi will relate, whatever I am saying I can say because हम दोनों डॉक्टर हैं, per chance we came to know, that is about mental health as on date। मेंटल हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट। एवा प्रकारना कोई केस होय जेमा लेडी इज ऑलरेडी अ विक्टिम, एनो मेंटल हेल्थ इज ऑलरेडी वेरी कॉम्प्रोमाइज्ड, शी इज ऑलरेडी सो स्ट्रेस्ड, तो ए अमारी जवाबदारी है कि आप एनो ध्यान राखिए, ठीक है ना। एक बीजा ने सपोर्ट सिस्टम आटलू स्ट्रॉन्ग करिए दैट मेंटल हेल्थ ऊपर पण फोकस करिए कि किसी भी लेडी को उसके बचपन से लेके जब तक वो बड़ी होती है, पछी एनो मैरिज थाय छे, प्रेग्नेंसी थाय छे, पछी शी बिकम्स अ मदर, शी स्टार्ट्स अर्निंग, माइट बी शी फेस्ड वायलेंस, वॉटएवर, ठीक है ना, ते आगळ लाइफ में जो जो बने छे, तो एमा एनो जो मेंटल हेल्थ नो एक कॉम्पोनेंट बहुत जरूरी है। एंड इसमें साथ की जो लेडीज हैं, ऑल द फेलो विमेन, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, दैट इज व्हाट आई फील। सो एक आखिरी सवाल, हमारे यहाँ गुजरात से बहुत सारी लड़कियां यूपीएससी करना चाह रही हैं, आप क्या कहेंगी इन शॉर्ट फॉर देम, बोथ ऑफ यू प्लीज। सो यूपीएससी के ऐसा एग्जाम है जो बिना पढ़े क्लियर नहीं हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम है जो केवल आपके इंटेलिजेंस से, आप इतने शार्प हैं कि बस 1 महीने में तैयारी की और एग्जाम निकल गया। यूपीएससी इज नॉट वन ऑफ दोज एग्जाम्स। इसके लिए आपको 1 साल तो पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो इतना मान ले, 3 ट्रायल दिया, भारी नहीं, उसकी फिर अपनी कहानी हो जाती है, क्योंकि अगेन ये 3 स्टेप में एग्जाम होता है। जो थोड़ा भी प्रिपरेशन कर रहा है वो जानता है। तो उसमें कई बार मेंस में मार्क्स आते हैं तो इंटरव्यू में नहीं आता, कई बार प्री ही क्लियर नहीं होता। तो इट्स अ टफ जर्नी। एंड दिस ऑल्सो, मैम वुड ऑल्सो अटेस्ट टू दिस कि मेंटली पहले प्रिपेयर्ड होकर रखना है कि हो सकता है कि फर्स्ट बार में सक्सेस ना मिले, या सक्सेस मिल भी गया तो आपकी वो रैंक नहीं आई जो आप चाहते हैं। तो इट मे बी अ लॉन्ग जर्नी। वो मेंटल रेजिलियंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। मैम आप क्या कहेंगे यूपीएससी के लिए? बिल्कुल, निधि हैज वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड કે જો યુપીએસસી ની તૈયારી કરવા માંગતા હોય યુથ, સો એના માટે ઇટ ઇઝ અ હ્યુજ ઓપોર્ચ્યુનિટી ટુ લર્ન એન્ડ ટુ ગ્રો। એ એક્ઝામ છે એના ક્લિયર કર્યા પછી દેર આર એમ્પલ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ટુ बिकम ऑफिसर्स, बट एट द सेम टाइम यूपीएससी टीचेस यू 3 मेन थिंग्स जो मैं પણ લર્ન કરી છે in all the 3 attempts that I had given, and એ છે પહેલાનો છે पेशेंस। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे पहले क्या होता था, कभी लाइफ में फेल होना सीखा नहीं था। तो जયારે फर्स्ट टाइम खबर पड़ी के वी हैवंट क्लियर्ड तो एक धक्को जेवो लाग्यो। सो पेशेंस છે। બીજી વાત છે મોટિવેશન, यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड। थर्ड इज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डोंट थिंक इट इज द लास्ट रिजॉर्ट। सुनीता विलियम्स जब वहां पे गए थे और वो वापस आए हैं तो उनसे हमें यह सीखना चाहिए दैट लाइफ
Here we are there on earth. There are so many opportunities. Life અમે ample opportunities provide કરે છે. UPSC is just one option. Go for it. Give it your best. Leave the rest. Thank you. The best part is Sunita Williams cannot tell her husband that I need some space. She is already in space. Thank you so much. થેન્ક યુ. Thank you so much. And I will thank both the ladies that they have made the Gujarat, their own state and their parents so proud. આ એવી સ્ત્રીઓ છે જે દેશની કાયદો અને વ્યવસ્થાના પાયામાં છે. આપણે એવું કહીએ કે સ્ત્રીઓની બુદ્ધિ પગની પાનીએ હોય, પણ મહત્વનું તો એ છે કે પગની પાની આખા શરીરનો ભાર ઉપાડે છે. તો આ એ સ્ત્રીઓ છે જે આ દેશનો ભાર ઉપાડે છે, આ દેશની સિસ્ટમને ચલાવે છે. So let us give them a big round of applause and any questions from them. Thank you so સો much. હવે સૌથી પહેલા તો અમારા ડિરેક્ટર જનક સરને અમે ફરી એકવાર મંચ પર ઉપસ્થિત કરવાની વિનંતી કરીએ. તેઓ પણ મોમેન્ટો આપી અને આપણા જે પેનલિસ્ટ છે તેમનું સન્માન કરશે. બિલકુલ. અને આ જે એ પદ પર બિરાજતી મહિલાઓ છે જેમની આટલી વાતોમાંથી આપણે એ સાંભળ્યું કે ઇમોશન્સ એ વીકનેસની નિશાની નથી. જો તમે રડો છો તો એનો મતલબ એવો નહીં કે તમે કંઈ કરી ન શકો. અને ખાખીથી ઉપર કંઈ નથી. ખાખીની લાજ રાખવી હંમેશા સૌથી પહેલું કર્તવ્ય છે. ખૂબ ખૂબ આભાર. અમે એક ફિલ્મ બનાવેલી, એનું નામ છે ખાખીમાં છે 7 રંગ. સો ખાખી એક જ રંગમાં 7 રંગ છે. જોરદાર તાળીઓ સાથે બંને આ દેશની કાયદો અને વ્યવસ્થા સંભાળતી સ્ત્રીઓ માટે. થેન્ક યુ સો મચ.